हेलो, वेलकम टू जीके सर क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट टॉपिक इज यूएनओ, which stands for United Nation Organization. So यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करी जाए तो एस्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945. So when it was established in 24 October 1945, and this is known to be as UN Day. 24 अक्टूबर को क्या बोला जाता है? It is UN Day. If I talk about headquarter of UNO, so it is in New York, और इसके मेंबर हैं 193. So what was the objective? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? UNO was established in 1945, and if you see the time period, so this time period is of World War II. So World War II में obviously वर्ड ऑर्डर तो सही नहीं होगा, वर्ड ऑर्डर खराब होगा, there is lack of peace between the country, there will be lack of harmony. Obviously in a war like situation, the cooperation between the country, peace, harmony disturbed. तो अगर बात करी जाए तो पीस, हार्मनी एज वेल एज कोऑपरेशन, ये सारी चीजें क्या होंगी? खराब हो गई होंगी. एंड in order to maintain this, in order to recover this, UNO एस्टैब्लिश करा जाता है 1945 में by replacing League of Nation. So League of Nation was another organization which was established earlier than UNO. So but League of Nation क्या होता है? League of Nation was ineffective. इफेक्टिव काम नहीं करती है. It was inefficient. So इसकी inefficiency के कारण UNO को एस्टैब्लिश किया जाता है. So in UNO, what you will learn? So you will learn what is UNO, what is the structure of UNO, how it work, what is the working of UNO, as well as if I see what is the importance, what is the importance. So if we see the current scenario, तो क्या UNO important है? So this can be important for your mains exam, and rest is important for your prelim as well as mains. So far we have discussed what is UNO, when it was established, where is the headquarter, and how many members are 193. So if I talk about the official language of UNO, official language की अगर बात करी जाए, so what are the official languages? तो official languages are 6.
First is Arabic, Spanish, Russian, English, French, Arabic, Spanish, Russian, English, French, Chinese. Sixth is Chinese. So there are 6 official language जो कि बोली जाती हैं यूएनओ में. And if I talk about Hindi language, so हिंदी लैंग्वेज की भी बात हो रही है कि इसको यूएनओ में ऑफिशियल स्टेटस दिलाया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए. ठीक है. सो द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग. बट इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में मल्टी लैंग्वेज, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मल्टी लैंग्वेज. सो द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया बीइंग ए कंट्री ऑफ मल्टी लैंग्वेज कंट्री, मल्टी लैंग्वेज, बीइंग द कंट्री ऑफ मल्टी लैंग्वेज, क्या वो हिंदी को प्रमोट कर सकता है इंटरनेशनल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में? So the answer is yes. Of India, then there are 22 official languages, and these are given in 8th schedule of Indian Constitution. If I talk about English, so English is a official language, but not as per the Constitution. Constitution ने जो English को official language होने का status दिया था, that is for 10 year. And in 1963 there was a official language act जो कि पार्लियामेंट ने पास किया, और इंग्लिश को बोला कि इट कैन बी कंटिन्यूड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर विद हिंदी. तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं सेंटर की. बट इंग्लिश लैंग्वेज 8th स्केड्यूल में नहीं है. It is not given in the 8th schedule. Official language are 22. English is also a official language, but not as per the Constitution. As per the Official Language Act, English remain to be the official language for the further time period. Constitution में 10 साल के लिए लिखा था. ठीक है. So this is the this is interrelation. When we study about international things, then we have to compare it with national things. If we study about national thing, then we have to relate it with international issues. So this is how we have to study. If we talk about the organs of UNO, now this is the structure, very important. If I talk about the organs of UNO, then it has 5 organs. So let's discuss these organs one by one. So if I talk about the organ, then the first organ is United Nations General Assembly. United Nations General Assembly. Now what do you mean by assembly? Assembly means sabha. Okay. And when we talk about assembly, then all the members of the assembly, they meet together, they discuss, they will vote. So how many members are there in UNO? So there are 193 members. What they will do? They will meet, they will discuss, and they also participate in voting. So यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या होता है? 193 मीट करते हैं, डिस्कशन करते हैं एंड वोटिंग करते हैं. वोटिंग करने के लिए मेजोरिटी जो चाहिए, दैट इज 2/3. 2/3 की मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है. मतलब 193 मेंबर का 2/3 निकालोगे तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए. बट 193 member are voting here, but still it is not the powerful organ of UNO.
The powerful organ of UNO is United Nations Security Council. How? It has 15 members. And इसमें क्या है, इसमें कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं. Some member are permanent. How many member are permanent? 5 member are permanent. If I talk about another part, then it consists of non-permanent member. Non-permanent member कितने हैं? 10. तो परमानेंट मेंबर कौन कौन है? 1 is USA, second is UK, third is China, France, and fifth is Russia. India is a non-permanent member. अब ये जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास एक स्पेशल पावर होती है, दैट इज वीटो पावर. वीटो पावर. अब ये वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर को बोलते हैं पावर ऑफ डिनाइंग, मना करने की पावर. पावर ऑफ डिनाइंग. नाउ वीटो पावर में होता क्या है? वीटो पावर में मेजॉरिटी वाला रूल नहीं चलता. मेजॉरिटी का रूल नहीं चलता वीटो पावर में. जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दो यूएन का, ठीक है, तो 14 कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं. 14 मेंबर बोलते हैं यस बना दो, बट एक मेंबर है चाइना, वो बोलता है कि नहीं, और वो इस डिसीजन को वीटो कर देता है. तो चाइना का ही डिसीजन माना जाएगा. मतलब अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अगर आपको चेंज करना है, चेंज करने के लिए वीटो किया जा सकता है. ठीक है, चेंज को रोकने के लिए, चेंज को रोकने के लिए वीटो किया जा सकता है, बट चेंज करने के लिए वीटो नहीं किया जा सकता. मतलब ये 14 मेंबर चेंज करना चाहते हैं, मतलब इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप देना चाहते हैं, तो ये वीटो नहीं कर सकते. जो चेंज को रोकना चाहता है, दैट मेंबर कैन वीटो. तो जब ये वीटो करेगा तो एक मेंबर का निर्णय माना जाएगा, बाकी 14 मेंबर जो मर्जी बोले नहीं माना जाएगा. ठीक है, जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो कुछ कंट्री जैसे इंडिया ने बोला कि आई विल नॉट टेक पार्ट इन वोटिंग. चाइना ने भी वोटिंग में पार्ट नहीं लिया. ये जो 4 कंट्री हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, 3 कंट्री जो हैं, तो इन्होंने रशिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया, बट रशिया ने खुद को क्या कर लिया? वीटो कर लिया. सो दिस इज हाउ रेजोल्यूशन ही वीटो हो गया, तो वो पास ही नहीं हुआ. ठीक है, सो दिस इज द पावर. ये जो वीटो पावर वाली कंट्री है, ये अपने फायदे के लिए इसको यूज कर सकती हैं. इसीलिए हम किसी न किसी परमानेंट मेंबर के साथ अपना रिलेशन जो है वो अच्छा रखते हैं. फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया के साथ हम ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते. सो रशिया हमेशा साथ देता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग वगैरह होती है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो नेक्स्ट ऑर्गन जो है यूएनओ का, जस्ट अ मिनट. Next organ of UNO is ICJ. ICJ. ICJ stand for International Court of Justice. अब देखो यूएनओ का ऑब्जेक्टिव क्या था? यूएनओ का ऑब्जेक्टिव था कि पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेशन होना चाहिए, कंट्रीज के बीच में पीस होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए. तो कोऑपरेशन कैसे होगा? जब जस्टिस होगा. इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, तो उसमें एक जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो कंट्रीज हैं उनका जो कोऑपरेशन है वो वायलेट ना हो, उनका पीस हार्मनी वायलेट ना हो. तो देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड. तो आईसीजे में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस आर 15 जजेस होते हैं, और इनका टर्म होता है 9 इयर्स. और ये जजेस कहां से आते हैं? इनको चुना जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा.
सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। तो इसमें टोटल मेंबर होते हैं 54। देखो कॉपरेशन को प्रमोट करना है हमें, दोनों जो भी कंट्रीज हैं सभी कंट्री के बीच में हमें कॉपरेशन को प्रमोट करना है, पीस को प्रमोट करना है, हार्मनी को प्रमोट करना है। सो यू कांट डू दिस इफ आप कंट्री की सोशली और इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल नेपाल में अर्थक्वेक आया, इंडिया ने हेल्प करा। सो इंडिया ने उसके बदले में कोई पैसे नहीं लिए, इंडिया ने वॉलेंटरली उस कंट्री का हेल्प करा, नेपाल की हेल्प करा। अभी श्रीलंका में क्राइसिस है तो श्रीलंका में भी इंडिया ने हेल्प करा। फिर कोविड के टाइम में वी हैव डिलीवर्ड वैक्सीन टू मोर देन 70 कंट्री। सो इट वाज द वॉलेंटरी हेल्प बाय इंडिया टू द कंट्री। तो इससे क्या हुआ, इससे कोऑपरेशन जो है वो प्रमोट हुआ कंट्रीज के बीच में। सो 54 कंट्री हैं, तो इनको भी कौन चूज करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो फिफ्थ ऑर्गन है, फिफ्थ ऑर्गन इज व्हाट, द सेक्रेटरिएट। अब देखो तो जो द सेक्रेटरिएट ऑर्गन है यूएनओ का, अब जो भी ऑर्गन्स, बाकी जो ऑर्गन है जो काम करते हैं, तो वो सारा का सारा ऑफिशियल वर्क कौन देखता है, द सेक्रेटरिएट। जो भी ये ऑर्गन, बाकी सारे ऑर्गन जो भी अपना ऑफिशियल काम करते हैं, जो भी रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो इसको कौन देखता है, द सेक्रेटरिएट। और इसके जो हेड होते हैं दैट इज जर्नल सेक्रेटरी। जर्नल सेक्रेटरी। तो अभी जो करंट जर्नल सेक्रेटरी है, करंट जनरल सेक्रेटरी हैं दैट इज एंटोनियो गुटेरस। अभी चेंज होने वाले हैं, गुटेरस। और जो फर्स्ट थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ वाज ट्रिगवेली। So what we have done so far, we have done what is UNO, what is the structure of UNO, ठीक है। So if we talk about what is the importance, what is the importance of UNO, so if we talk about importance in today's world, so what was the objective, objective था कि कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो, कोई कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक ना करे। बट आज के सिनेरियो में ये सारी चीजें जो हैं वो फेल्ड दिखती हैं, फेल्ड दिखती हैं। वाई, आप नॉर्थ कोरिया देख लो, ठीक है, आप यूएसए का देख लो, तो यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, उनके आर्मी जो जनरल हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है मिसाइल के थ्रू, उनकी डेथ हो जाती है आर्मी जनरल की। इफ आई टॉक अबाउट रशिया, तो रशिया ने 2014 में क्रीमिया के ऊपर अटैक किया 2014 में, फिर वो G8 से बाहर हो गया। तो G8 क्या था, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कॉपरेशन की बात होती थी, तो G8 से बाहर हो गया। अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो परमानेंट मेंबरशिप लेने की जो बात है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो रेजोल्यूशन पास होने ही वाला था, रशिया ने वीटो कर दिया, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, या इसको अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री, अभी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, इंडिया
पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज के अपने अपने डिस्प्यूट हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट हैं, इंडिया चाइना डिस्प्यूट है, ठीक है। तो इंडिया चाइना इज ए एक्सपेंशनिस्ट कंट्री, तो वो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है, ठीक है। तो वो जो दूसरी कंट्री के प्लेसेस हैं उनको भी अपना बताता है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो चाइना का ही इशू ताइवान के साथ है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज क्या है, ये सारे इश्यूज इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बिगाड़ते हैं। चाइना का अगर और देखा जाए तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से कोई भी कंट्री खुश नहीं है, ठीक है। जैसे जापान हो गया, जापान भी खुश नहीं है। बाकी आप आसियान कंट्रीज कोई भी देख लो, आसियान कंट्री कोई भी चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से खुश नहीं है। चाइना का डेप्ट ट्रैप कंट्रीज को फंसा रहा है अपने डेप्ट में, और चाइना फिर जो रिसोर्सेज हैं बाकी कंट्रीज के उनको कंट्रोल कर रहा है। सो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस, तो अभी देखा जा रहा है कि यूएनओ अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो खो रहा है। अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है, बट इसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत जरूरत है, ठीक है। इसमें रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो चेंज करने की काफी जरूरत है अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बनाए रखना है, ठीक है। सो स्टिल इट इज नॉट सो बैड कि इसको हम चेंज कर दें या हम इसको रिप्लेस ही कर दें। इसमें अगर कुछ रिफॉर्म्स हो सकते हैं तो वो हमें करने चाहिए। So this is very important for your mains exam. If this kind of question came into your exam, so then you can write कि भाई कैसे हमें करना चाहिए चेंज। ऑलवेज चेंज कर देना, ये कर देना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। रिफॉर्म, यू कैन टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स कैसे करे जा सकते हैं, क्लियर। सो यू मे आस्क कि भाई रिफॉर्म जो है वो हम परमानेंट मेंबरशिप और कंट्रीज को भी हमें देनी चाहिए। अब जैसे अगर देखा जाए तो परमानेंट मेंबरशिप जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज के पास है ही नहीं। अफ्रीकन कंट्री कोई भी इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, ठीक है। तो जो वहां पे पार्टिसिपेशन है वो लोगों का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्डली काम करना चाहिए। जैसे हमेशा एलिगेशन लगते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री और यूएसए की तरफ ही ज्यादा सही डिसीजन देता है, बाकी एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इनके जो निर्णय होते हैं वो उनके खिलाफ होते हैं। सो ये सारी चीजें रिफॉर्म है और इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको कैसे किया जा सकता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।